अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय. Om Shanti Shanti Shanti. A very warm good evening to everybody present here. It gives me immense pleasure to welcome you all to this beautifully insightful evening where we are all gathered in the holy city of Kashi and the blessed campus of Banaras Hindu University to witness the historical book launch of Vikram Sampat's Pratiksha Shiv ki Gyanvapi Kashi ke Satya ka Udghatan. काश्याम ही काश्यते काशी काशी सर्वप्रकाशिका स काशी विदिता येन तेन प्राप्ता ही काशिका. Enlightenment exists in Kashi. Only Kashi showers the light of knowledge through divinity, physical and spiritual paradigm on its inhabitants. He who understands Brahm of Kashi obtains the enlightenment and experiences in Kashi. आज की शाम निसंदेही संयोगों की शाम है. आज हम देख रहे हैं कि कैसे एकेडमिया और इंडस्ट्री संयुक्त रूप से इस युवा भारत को उसके इतिहास के बारे में बताने में प्रयासरत है. काशी मंथन और प्रभा खायतान फाउंडेशन ने साथ मिलकर इस पुस्तक विमोचन और परिचर्चा का आयोजन किया है. काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की परिकल्पना ही यह सोचकर की गई थी कि इसके पग पग भूमि से प्राचीन गौरव और सभ्यता का एहसास मिले और काशी मंथन इसी परिकल्पना का एक छोटा सा परिदृश्य है. Kashi Manthan as an initiative was started in 2018 to work to prevent Kashi, the epitome and progenitor of Indian culture and tradition, from losing its moorings. Kashi Manthan is trying to make its humble contribution to this magnificent legacy of providing fresh dimensions to the narratives for nation and human evolution. People in Kashi Manthan are concerned and willingly trying to go to that extra mile to revive and regenerate the knowledge and domain of the city and nation as a whole. We together are delighted to welcome Prabha Khaitan Foundation, a Kolkata-based non-profitable organization which aims to create a more culturally intellectual society. Also, I take this opportunity to congratulate them and wish them best for their Varanasi chapter. Indeed, we are looking forward to more events together. In the embrace of divinity, we find the strength to endure, the wisdom to understand, and the grace to transcend. To start with the auspicious ceremony, we will now proceed with the Mangalacharan to set the tone for a harmonious and serene experience. I request all of you to quietly join us as we embark on a journey of devotion, culture and celebration. मंगलाचरण के लिए मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी काशी के विद्वान श्री श्रीनिवास गणपति जी को और श्री हर्ष गणपति जी को. ओम नमः सोमाय च रुद्राय च नमस्ताम्राय च अरुणाय च नमः शंगाय च पशुपतये च नमः उग्राय च भीमाय च नमो अग्रे वधाय च दूरे वधाय च नमो हन्त्रे च हनीयसे च नमो वृक्षेभ्यो हरिकेशेभ्यो नमस्ताराय नमः शम्भवे च मयो भवे च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च नमस्तीर्थ्याय च ल्याय च नमः पार्याय च वार्याय च नमः प्रतरणाय चोत्तरणाय च नमः आतार्याय च लाद्याय च नमः शष्प्याय च फेन्याय च नमः सिगत्याय च प्रवाह्याय च. आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद. Thank you so much for this captivating experience. I am sure all of us are dived in the very spirit of spirituality and the vibrant echoes of Mangalacharan will help us move forward smoothly in the event. Now, I welcome Ms. Shruti Agarwal, SAS Women of Prabha Khaitan Foundation to proceed. धन्यवाद शुभांगी. नमस्कार, मैं श्रुति अग्रवाल, एहसास वुमन प्रयागराज, यहाँ उपस्थित सभी सुधीजनों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ. आज यहाँ डॉक्टर विक्रम संपत की नवीनतम साहित्यिक रचना के हिंदी अनुवाद प्रतीक्षा शिव की ज्ञानवापी काशी के सत्य का उद्घाटन, इस पुस्तक का विमोचन समारोह का सब हिस्सा बनकर मुझे बहुत गौरवान्वित महसूस हो रहा है. और विशेषकर जब यह
भगवान विश्वनाथ की नगरी काशी में ही संपन्न हो रहा है और BHU के कैंपस में। सर्वप्रथम मैं आप सभी को प्रभा खेतान फाउंडेशन का एक छोटा सा परिचय देना चाहती हूँ। प्रभा खेतान फाउंडेशन कोलकाता स्थित एक नॉन प्रॉफिट ट्रस्ट है जिसकी स्थापना 1980 के दशक में प्रतिष्ठित साहित्यकार, उद्यमी एवं समाज सेवी डॉक्टर प्रभा खेतान ने की थी। वर्तमान काल में यह संगठन देश और दुनिया के 55 से अधिक शहरों में कला, संस्कृति, शिक्षा, महिला सशक्तिकरण, वन्य जीवन संरक्षण और साहित्य प्रचार के क्षेत्र में सक्रियता से काम कर रहा है। अपनी भाषा, अपने लोग, इस मूल मंत्र के आधार पर यह फाउंडेशन भारत की बहुसांस्कृतिक विविधताओं का एक सुंदर भावपूर्ण समन्वय है। अनेकता में एकता का सिद्धांत प्रभा खेतान फाउंडेशन को विगत 4 दशकों से ऐसे बुटीक प्रोग्राम्स करने के लिए प्रेरित कर रहा है जो भारत की साहित्यिक व सांस्कृतिक झांकी को प्रदर्शित करते हैं। फाउंडेशन के प्रोग्राम्स में हिंदी में कलम का आयोजन होता है, अंग्रेज़ी में द राइट सर्कल एंड ऑथर्स आफ्टरनून, उर्दू, अरबी व फारसी में कलम, क्षेत्रीय भाषाओं में आखर व बुक लॉन्च के लिए किताब जैसे आज का इवेंट। इसके साथ ही साथ कला व संगीत के लिए सुर और साज, एक मुलाकात, चलचित्र रंगमंच व चौपाल जैसे कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाता है। अपने इन सभी बुटीक क्यूरेशंस, साहित्यिक संवादों के माध्यम से फाउंडेशन प्रसिद्ध लेखकों, कलाकारों, कवियों, विचारकों और बुद्धिजीवियों को एक सूत्र में जोड़ती है। धन्यवाद। अब मैं आप सभी के समक्ष आज के आदरणीय मुख्य अतिथियों पद्मश्री श्रीमती मालिनी अवस्थी जी, श्री विष्णु शंकर जैन जी, अतिथि लेखक विक्रम संपत जी व उनके साथ संवादकर्ता श्री मयंक नारायण सिंह जी का परिचय देना चाहूँगी। मालिनी अवस्थी जी से कौन परिचित नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वे एक अनूठी स्वर साधिका हैं। उनके स्वरों में भारतीय लोक संगीत खनकता है। आप भोजपुरी, हिंदी व अवधी में गाती हैं। आपको विशेष लगाव है बनारस की इस पावन नगरी से, जहां आपने प्रसिद्ध ठुमरी गायिका स्वर्गीय श्रीमती गिरिजा देवी जी से प्रशिक्षण प्राप्त किया है। आपको 2016 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। अब मैं विष्णु जैन जी का परिचय दूंगी। अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन, जिन्होंने बचपन से ही अपने पिता श्री हरिशंकर जैन को हिंदू धर्म और सनातनी मूल्यों के लिए लड़ते देखा। उन्होंने 2010 में अपनी कानून की पढ़ाई पूर्ण की। वह अपने पिता के अंडर लॉ की प्रैक्टिस शुरू की। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि मामले से की थी। ज्ञानवापी स्थल पर प्रार्थना करने के अधिकार की मांग करने वाले मामले में आप याचिकाकर्ताओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस केस ने एडवोकेट विष्णु शंकर जैन जी को काशी विश्वनाथ के भक्तों के घर घर में मशहूर कर दिया है, जो धैर्यपूर्वक अपने भगवान का निवास पुनः प्राप्त करने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। आज का संवाद जो डॉक्टर विक्रम संपत से करेंगे मिस मयंक नारायण सिंह जी। आप बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के जॉइंट रजिस्ट्रार हैं। आपने प्रशंसित थ्रिलर वुल्फ स्लेयर लिखी है। आप एक सक्रिय खिलाड़ी रहे हैं और हॉकी खेलते हुए कई प्रतियोगिताओं में विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व किया है। आप काशी मंथन के संस्थापक हैं, जिसका उद्देश्य युवाओं को सशक्त बनाना है, एक ऐसी पीढ़ी का निर्माण करना है जिसमें राष्ट्रवाद प्रचुर मात्रा में हो, साथ ही आध्यात्मिक उत्साह हो। आज के अतिथि लेखक डॉक्टर विक्रम संपत, बेंगलुरु के निवासी व इतिहासकार डॉक्टर संपत 9 बहुचर्चित व प्रशंसित पुस्तकों के लेखक हैं। आपकी कई कृतियाँ
नेशनल बेस्ट सेलर्स हैं, जिसमें सावरकर पर लिखी हुई जीवनी 2 भाग में प्रकाशित हुई है। सावरकर echoes from a forgotten past and सावरकर a contested legacy। साथ ही साथ ब्रेव हार्ट्स ऑफ भारत, विग्नेट्स फ्रॉम इंडियन हिस्ट्री, और अब यह नवीनतम कृति वेटिंग फॉर शिवा। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी व हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने आपकी इन रचनाओं को बहुत सराहा है। 2021 में डॉक्टर संपत को यूनाइटेड किंगडम की प्रतिष्ठित रॉयल हिस्टोरिकल सोसाइटी का फेलो चुना गया और आप इस प्रेस्टिजियस रिकग्निशन के लिए चयनित होने वाले प्रथम भारतीय हैं। आपको अपनी पुस्तक माय नेम इज़ गौहर जान द लाइफ एंड टाइम्स ऑफ अ म्यूजिशियन के लिए साहित्य अकादमी से इंग्लिश लिटरेचर के पहले युवा पुरस्कार व न्यूयॉर्क में ऐतिहासिक शोध में उत्कृष्टता के लिए ARSC इंटरनेशनल अवार्ड प्राप्त है। 2015 में राष्ट्रपति भवन के लेखक के रूप में चुने गए 4 लेखकों व कलाकारों में से आप एक थे। डॉक्टर विक्रम ने ऑस्ट्रेलिया की क्वींसलैंड यूनिवर्सिटी से इतिहास व संगीत में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की है। नेहरू मेमोरियल संग्रहालय व पुस्तकालय में सीनियर रिसर्च फेलो रहे हैं। आप एस्पेन ग्लोबल लीडरशिप नेटवर्क व आइजनहावर ग्लोबल फेलो के साथ विसेंशराफ्ट श्लॉक बर्लिन में विजिटिंग फेलो भी थे। वर्तमान में आप मोनाश यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया में सहायक सीनियर फेलो हैं। आप आर्काइव ऑफ इंडियन म्यूज़िक के फाउंडर हैं व फाउंडेशन ऑफ इंडियन हिस्टोरिकल एंड कल्चरल रिसर्च के संस्थापक हैं, जो भारतीय इतिहास में नई विद्वता को बढ़ावा देता है व अर्थ नामक एक कल्चरल फेस्टिवल का आयोजन करती है। अब मैं मालिनी जी, विष्णु जी, विक्रम जी और काशी विश्वनाथ जी से पधारे वेंकट रमन धनपति जी से अनुरोध करती हूँ कि महामना मदन मोहन मालवीय जी की मूर्ति पर पुष्पांजलि अर्पित करें व दीप प्रज्वलन करें। प्रभा खेतान फाउंडेशन का एक सशक्त बाजू है एहसास वुमन। फाउंडेशन की जो विमेन एम्पावरमेंट विंग है, यहाँ सभी एहसास वुमन अपने अपने कार्यक्षेत्र में निपुण हैं और समाज की उन्नति के लिए कार्य करती हैं। और अब मैं आमंत्रित करती हूँ वाराणसी की एहसास वुमन भारती मधोक जी को कि वे मंच पर आएं और सभी मुख्य अतिथियों का अभिनंदन करें।
कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए मैं शुभांगी से अनुरोध करूंगी कि आएं और मंच का संचालन करें। Thank you so much, ma'am, for beautifully conducting the event. And it's the time of the day, the hour we all were waiting for, the book launch ceremony. पुस्तक विमोचन के लिए मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी माननीय श्रीमती भारती मधोक जी को, माननीय श्रीमती श्रुति अग्रवाल जी को, श्री प्रवीण जी को और साथ ही हमारे खास मेहमान श्री वेंकट रमन गणपति और श्रीकांत मिश्र जी को, जो कि उनकी उपस्थिति मात्र से हमें स्वयं काशी विश्वनाथ के यहाँ होने का एहसास मिल रहा है। आप सभी गणमान्य जनों से अनुरोध है कि मंच पर जुड़कर इस पुस्तक विमोचन कार्यक्रम को और अलौकिक बनाएं।